Good morning, dear students. Today we will discuss about HTML and its advanced features. In this chapter, we are going to learn about list in HTML, adding images to web page, linking to other web page, inserting table in a web page, creating marquee, getting user data with form. First of all, let us start with list in HTML. For this, I am going to open Notepad for coding, and then I will display you how to display data in list form. Okay. सो लेट मी ओपन टिल देन लिस्ट होती क्या है। लिस्ट जो है एक तरह का सीक्वेंस है किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, आइदर इन नंबर्ड फॉर्म और इन अननंबर्ड फॉर्म। सो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल हियर फॉर अ लिस्ट। नाउ html /html, inside that head /head, inside /head we will write title of the document is list in HTML. Now after head tag we will write the content in which tag, that is body tag. Body/body. Inside this we will create a list. For creating a list, let us write the heading that will be displayed on the web page in h1 tag. Example of ordered list. ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज ऑर्डर लिस्ट में हम 1 2 3 4 ABCD या फिर इन रोमन नंबर्स 1 2 3 4 कैपिटल या स्मॉल लेटर में हम जो है ABCD में डिस्प्ले कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में डेटा को। ओके, सो लेट अस क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट। नाउ फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट द टैग इज ordered list for numbered list, ol/ol. Inside this we will create a list li. This is for list items. Okay, like mango /li. Again li banana, now /li. Again li grapes, now /allow. Now in this HTML code, I am trying to show you an ordered list which is having 3 fruit names in a order in numbered list. Okay, so let us first of all save it. Save पे click करेंगे, right here file name .txt is the default format of notepad file. We have to change its format from .txt to .html. .html is the extension of HTML document. So here the file name is ordered list. .html. Now where I am going to save this? On desktop. Okay, clicking here on desktop, this is the location, user friend OneDrive. You can check your location from here also, from the address bar. Now clicking on save button. Now my file is saved with the name ordered list. Let us open it. Going to the desktop पे आ गए और यहाँ पे देखिए ordered list का पेज कहाँ दिख रहा है, ये रहे, this one. Now right click here and then open. We will see our output on web browser. Here is the name that I have written in h1 tag, example of ordered list. Now on the title bar you can see the name of web page, list in HTML, and this is the list mango, banana and grapes 1 2 3 in numbering form.
Now suppose if I have to start this from 5, 6, 7, 8 or 11, 12, 13, then what I have to do? क्या करना होगा मुझे इस नंबर लिस्ट को जो है 5, 6, 7 से स्टार्ट करने के लिए? Then I will change the attribute of ordered list tag. So अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है एक साइड ओपन कर लिया ताकि यहाँ पे मैं आउटपुट देख सकूं इजिली सेम वेब पेज में, एंड वन साइड आई एम ओपनिंग my HTML code so that whatever I will edit here you can see the changes here. Okay, now in ordered list I am typing here start, START, start equal to 5. Now click on file and then save. अब जब तक मैं इसे सेव नहीं करूंगा तब तक मुझे वेब पेज में कोई भी चेंजेस डिस्प्ले नहीं होगा. Now right click here and then refresh. Now look the changes. The list is going to start from 5, 6 and 7. So अब समझ में आया. Start attribute, this is the attribute start. इस attribute का क्या यूज है ordered list में? With the help of this attribute we can change the starting point of our ordered list. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग कर दिया. नाउ इफ आई हैव टू चेंज फ्रॉम 1 2 3 4 नंबरिंग टू अल्फाबेट ABCD में करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा एक एट्रीब्यूट चेंज करेंगे. द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज टाइप, TYPE, टाइप इक्वल टू A. Now again click on file and then save. On my web browser right click and then refresh. Now look here EFG. Now टाइप एट्रीब्यूट डिस्प्लेस की जो नंबर की जो लिस्ट होगी वो किस फॉर्मेट में होगी? ABCD के फॉर्मेट में, एंड दैट फॉर्मेट विल स्टार्ट फ्रॉम 5. तो जब आप ABCD को काउंट करोगे तो 5th नंबर पे आपका आ जाएगा E, एंड आफ्टर देन EFG. 3 लिस्ट आर देयर, तो हियर आई एम गेटिंग 3 लिस्ट. ओके, clear to you all? These two attributes, start attribute and type attribute of ordered list. Now in the same example of ordered list, I am going to create an unordered list below ordered list. Now for unordered list, unordered मतलब कि unnumbered list, जो कि नंबरिंग में नहीं रहेगा, कोई ना कोई शेप से, कोई इमेज से जो है डिस्प्ले होगा हमें डेटा हमारा. ओके, बट इट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर 1 2 3 4 ABCD or Roman numbers. Okay, so here I am going to start an unordered list. For unordered list I will type here UL. unordered list का जो टैग होता है that is UL, and ये एंड होता है /UL से. ओके, मैंने एक लिस्ट स्टार्ट की और एंड कर दी. अभी इसमें कोई भी लिस्ट आइटम्स नहीं है. नाउ फॉर लिस्ट आइटम आई एम गोइंग टू ऐड हियर LI. लिस्ट आइटम के लिए सेम होगा LI, अगेन LI and again LI. Now here I am going to write the name of cities in UP. Okay, for example GHAZIPUR, Gazipur, name everyone knows. Okay, Ayodhya and Varanasi. Okay, now I am going to save here. अब एक चीज यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ तो LI के बाद /LI का कहीं पे यूज नहीं किया है. नाउ लेट इट सेव फर्स्ट. सेव कर लिया और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं. राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश. नाउ लुक हियर, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द लिस्ट इन अननंबर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्म. ओके, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट व्यू है दैट इज द डिस्क व्यू. ओके, अब यहाँ पे देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि LI हमने स्टार्ट तो किया बट /LI नहीं लिखा, दैट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, /LI इज नॉट कंपल्सरी. जहां पर भी हम LI लिख रहे हैं तो /LI कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज गुड मैनर टू, गुड प्रैक्टिस टू ऐड /LI आफ्टर एंडिंग LI टैग. ओके, अब यहाँ पे अगर हमें चेंज करना हो, डिस्क से स्टार सेव करना हो या फिर जो स्क्वायर सेव करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो सेम एट्रीब्यूट वी विल टाइप हियर, दैट इज टाइप. टाइप इक्वल टू STAR. स्टार चेक करते हैं पहले, स्टार कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू है कि नहीं. सेव किया,
राइट, सॉरी, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। तो स्टार कोई वैल्यू नहीं है। नाउ अगेन आई एम टाइपिंग ए स्क्वायर फाइल एंड देन सेव, क्लिक ऑन रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे जो भी आ गया सब स्क्वायर शेप में आ गया। ओके, तो स्टार वैल्यू नहीं है लेकिन स्क्वायर क्या है, वैल्यू है। तो कभी कभी हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है टाइप में वैल्यूज हम क्या क्या दे सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट का कोई रोल नहीं है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ABCD 1 2 3 4 के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले नहीं होना, दैट इज इन रैंडम ऑर्डर। ऑर्डर तो हम सेट करेंगे लेकिन सब कुछ हमें डिस्क के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लिस्ट दिखाई देगा। ओके, now this is clear to you all, ordered list and unordered list. Now let us learn how to add images in our web page. So for adding image we have to add here। अब चलो इस एग्जांपल को जो है रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेज ऐड करने के लिए। केवल वेब पेज में हमें क्या दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा, दैट इज इमेज। ओके, सो फॉर एडिंग इमेज वी विल यूज img attribute, img, and then its img tag, sorry, and its attribute is src equal to, now we will write here the address from where we are going to display our picture। तो यहाँ पे हम कोई एक इमेज देख लेते हैं, डाउनलोड्स में कोई इमेज है या नहीं। Okay, now this here, this one I am choosing image, clicking on the properties। From here I will get the name and this is the location। Okay, see user friends download, this is the location I am copying। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। डाउनलोड्स के बाद मैं अब क्या करूंगा, नाम। Now this one is the name, copying the name and pasting it here by adding a slash sign। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव, and then here in my web page I am going to refresh it and look here the image। okay, यहाँ पे देखिए फुल इमेज आपको दिखाई दे रही है। this is the way we can add image in our web page। ओके, लेकिन इमेज की साइज देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के। फुल पेज पे आपका इमेज आ रहा है, हाउ कैन वी सेट द साइज ऑफ द इमेज? इज देयर एनी गेसेस टू सेट द साइज ऑफ द वेब पेज? वी कैन चेंज इट्स हाइट एंड विड्थ। ओके, हाइट एंड विड्थ सेट करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज की साइज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट आपका आता है img में, दैट इज alt, अल्टरनेट टेक्स्ट। alt इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर इमेज ऑफ मकर संक्रांति। let me save it, file, click on save, right click on the web browser। तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रहा है। right click on the web page and then look at alt text से होता क्या है, suppose if the image is not available, I am going to delete this image, deleted, image deleted। now my web browser I am again going to refresh it। now look here, image तो आपकी डिलीट हो गई। अब तो जो एड्रेस दिया हुआ था वहां पे आपको इमेज मिलेगी नहीं। so whatever I have written in alt text, that is in alternate text, that will be displayed here, image of मकर संक्रांति। okay, तो alt text का यूज क्या है, जब भी इमेज अगर आपको फाउंड नहीं होगा उस लोकेशन पे तो वहां पे आपको फिर alt text whatever you have written that will be displayed in place of the image। okay,
Now the next point is that is one more tag here, attribute, the title attribute that will be displayed in some of the web browsers in place of ALT attribute. अगर किसी किसी वेब ब्राउजर में आपको ALT attribute नहीं सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इन img tag. Now let us understand some more attributes like align attribute and its values. Alignment होता क्या है? With the help of alignment we can set the image to display at the starting point of the web page or right side or left side or डाउन साइड बॉटम साइड. ओके, सो अलाइनमेंट से हम जो है इमेज की लोकेशन को सेट कर सकते हैं कहाँ पे इमेज आपका डिस्प्ले होगा. लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को वापस लेकर के आते हैं रिसाइकिल बिन में से, अदरवाइज ALT टेक्स्ट ही डिस्प्ले होता रहेगा. राइट क्लिक एंड देन रिस्टोर. इमेज आपकी चली गई उस लोकेशन पे वापस. नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू चेंज align attribute ALIGN align equal to, I am typing here center or right. Now clicking on file, then save. अब यहाँ पे करते हैं refresh. Now look here, the alignment of the image that is at the right side of the web page. पहले ये क्या था, लेफ्ट साइड में था, अब किस साइड में है, राइट साइड में है. सबसे पहले हम इसकी साइज को भी सेट कर लेते हैं so that we can display it very easily. Height equal to 10%, width equal to 20%. File, then save, right click, रिफ्रेश. यहाँ पे साइज देखिए. अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज की वैल्यू चेंज करने पे इमेज आपका कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. हाइट और विड्थ से पता चला. यहाँ पे 10% किया तो ओरिजिनल साइज का 10% आपका हाइट हो गया और विड्थ आपका कितना हो गया, ओरिजिनल साइज का 20%. 40-30. Again click on file, save, and look here the size will automatically change. Okay, now coming to the align attribute. Align attribute में हम लोग क्या करते हैं, राइट से करते हैं यहाँ पे लेफ्ट. the value I am giving here left, file and then save. Coming to the web browser, right click and then refresh. यहाँ पे देखिए इमेज आपकी कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द वेब पेज. ओके, मिडिल वैल्यू दे करके देखते हैं कहाँ पे आपको दिखाई देगा. कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट टू सेव योर फाइल. बार बार हमें फाइल पे जाकर के सेव करने की जरूरत नहीं है. इफ आई विल प्रेस both the keys simultaneously, CTRL plus S, then it will save automatically. अब यहाँ पे गए वेब पेज पे, राइट क्लिक किया, मिडिल में यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है. मिडिल कब हमारा यूज होगा, मिडिल आपका जो है कई सारे हो सकता है ब्राउजर के साथ सपोर्ट ना करे तो इसलिए मिडिल में आपको नहीं दिखाई देगा विदाउट टेक्स्ट. ओके, सो ऐसे ही आपके वैल्यूज इसमें दिया हुआ है, राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, मिडिल, बॉटम करके देखते हैं. ये सारी वैल्यूज आपकी जो है, कुछ वैल्यूज इसमें से ऐसी हैं जो कि जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो उसके साथ साथ आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो पाएगा. जैसे कि हमें बॉटम लिख करके देखते हैं, राइट क्लिक देन रिफ्रेश. बॉटम, मिडिल, टॉप, ये तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो कि आप कोई टेक्स्ट लिखोगे तब जा करके आपको इसका डिफरेंस क्लियर होगा कि ये इमेज आपको कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. लेट मी राइट हियर एग्जांपल ऑफ image tag and after image using src attribute and align attribute. Okay, now control S, save,
राइट क्लिक देन रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है इमेज एग्जांपल ऑफ इमेज टैग दिखाई दे रहा है टॉप पे। आई यूजिंग एसआरसी एट्रीब्यूट एंड अलाइंग एट्रीब्यूट आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर की साइज जो है छोटी है इसलिए। अब यहाँ अलाइंग में टॉप से हम लोग क्या करते हैं, बॉटम। ओके, फिर इसे किया सेव, देन अगेन राइट क्लिक रिफ्रेश। नाउ सी द डिफरेंस, इमेज जो है आपका टॉप पे दिखने लगा, टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो सब कुछ बॉटम पे आ गया। ओके, नाउ द डिफरेंस इज क्लियर टू यू ऑल। That is all for today, and in next video we will discuss about inserting link and other topics of this chapter. Okay, thank you, have a good day.